नाउ व्हाट वी हैव इज we'll start from rape. ठीक है? I hope no one is uncomfortable reading all this because कभी कभी कुछ लोग uncomfortable होते हैं. I am not, because I think कि being lawyers we are a very different breed. We have to read everything, we have to talk about everything, we have to know about everything, we have to inform others about everything, and we have to fight for things as well. तो कई लोग बड़ा शर्माते हैं ये सब चीजें पढ़ने में, but अगर किसी को हो शर्म तो you know I think we should study. अगर किसी को कोई reservations हैं, you can share. Now, section 375, first of all, is one of the offenses on human body. अभी तक human body चल रहा है. हमने शुरू किया था 299 से, and it is going to end on 377. ठीक है? उसमें ये जो एरिया है 375 से लेके 376E, it talks about sexual offenses, rape and stuff. Now 375 के अंदर कुछ अलग अलग तरीके दिए गए हैं जिन तरीकों से रेप हो सकता है. Potentially it just wants to cover every kind of sexual activity which can happen with a person without consent. ठीक है? So it does not have to be complete penetration. It does not have to be only the genitals. It does not have to be the person actually using limbs. It could be a person who is inserting a rod, जैसा निर्भया केस में हुआ था. It could be a person who is not penetrating but only rubbing his genitals on the other lady's genitals. It could be someone who is applying mouth to the genitals. ये सारी चीजें हो सकती हैं. तो रेप की डेफिनेशन जो है वो ट्राई करती है कि ये सारे कंपोनेंट्स को कवर कर लिया जाए, which will include labia majora, minora, urethra, and everything, mouth and anal sex, oral sex, everything. So everything will come in it. Now 376 में इसकी पनिशमेंट दी जाती है. अच्छा, रेप में जब वो रेप एज अ बायोलॉजिकल फंक्शन बताता है, उसके साथ साथ ये भी बताता है कि किन किन सिचुएशंस में कभी कभी अगर वो प्रॉपरली डेफिनेशन में फिट नहीं भी हो रहा है तब भी रेप होगा. नाउ नॉर्मली व्हेन वी से रेप, इट मींस व्हेन यू आर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ लेडी, इट कैन नॉट बी अ मैन, इट्स अ लेडी or a female of any age. If you're having intercourse, it has to be without consent. Now there might be some situations जहां पे consent तो है but it is not a valid consent. That is also covered under 375. ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं? When the person is in fear or under a threat, ठीक है, or the lady is scared, very scared, and she could not shout or call anybody, anything like that. The lady was in a vegetative state. She was not, she's deaf or she cannot call out or anything like that. If she is under 18 years of age, she does not know जो भी मेरे साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है, then she could be someone who is under your influence. You are the boss or you are जैसे एक कभी केस आया था पीछे ही AK गांगुली, जस्टिस AK गांगुली का. उसमें केस क्या था कि he was accused of raping an intern. अब कोई सुप्रीम कोर्ट का जज और कोई एक इंटर्न, उसके ऊपर कितना इन्फ्लुएंस होगा ना उसका. He can have all the influence on her. A police officer and a lady who's been arrested, इन दोनों के बीच में भी बहुत इन्फ्लुएंस है, ठीक है. तो अब लेडी को वो कुछ भी बोल सकता है, मैं नहीं छोड़ूंगा, गलत रिपोर्ट बना दूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड शी विल हैव टू डू व्हाटएवर शी नीड्स टू बी डन. ऐसे ही एक बीच में केस आया था जहाँ पे एक कोई IG साहब थे, इंस्पेक्टर जनरल थे, वो एक कांस्टेबल के साथ ही वाज इन्वॉल्व. अब एक इंस्पेक्टर जनरल और एक कांस्टेबल, again there's a lot of influence that can be laid upon the lady and she could be forced to do anything that she has to. Now in a way she's consenting, in a way she's not resisting, in a way she's not shouting, she's not calling anybody, everything. In a way she has given her consent, she is actually participating in the activity, but still it's a rape. तो ये सारी चीजें 375 कवर करता है, ठीक है. इसी तरह से if someone's your wife, अब इंडिया में वाइफ के साथ फोर्स्ड
सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नॉट अ क्राइम अभी तक, एटलीस्ट। उसके ऊपर डिबेट चल रही है, केस चल रहा है, बहुत बड़े बड़े लॉयर्स हैं, रिबेका जॉन मैम है, जे साई दीपक हैं, बड़े बड़े लॉयर्स इसमें डिबेट कर रहे हैं। The बट one अभी which is तक, called as marital rape, that's what you're talking about? सॉरी सर, The one which is hot topic of debate is marital rape, that's what you're राइट talking about? राइट राइट सर, मैरिटल रेप। सो मैरिटल रेप अभी तक हमारे यहाँ पे ऑफेंस नहीं बना है। हमारे यहाँ पे ऑफेंस क्या है? अगर आपने 15 साल के नीचे की बच्ची से शादी करी है, उस केस में रेप होगा, चाहे वो आपकी वाइफ है। आप ये नहीं कह सकते कि मैरिटल रेप तो हमारे यहाँ ऑफेंस ही नहीं है। अरे आपकी जो वाइफ है, शी इज लेस देन 15 एंड यू आर अ डेविल, सो इस केस में इट बिकम्स अ रेप। एज ऑफ नाउ ये नाज फाउंडेशन का एक केस था, उसमें इसे चेंज करके 18 कर दिया गया था कि अगर 18 साल से नीचे की भी है अगर आपकी वाइफ, देन ऑल्सो इट्स अ रेप। तो आप मैरिटल रेप वाले क्लॉज में अपने आप को बचा नहीं पाओगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट 375 टॉक्स अबाउट। नाउ 376 आता है, वो पनिशमेंट बता देता है रेप की। देन कम्स 376A, which talks about vegetative state of the victim. This is what happened in Nirbhaya rape kand. These 5 people who raped her, they left her in a vegetative state. Vegetative state कुछ नहीं होती, you become a vegetable. It comes from vegetable actually, that you are nothing more than just flesh. You're nothing more than that. You cannot talk, you cannot move, you cannot do certain pursuits that you should be doing as an able-bodied person. So वेजिटेटिव स्टेट में अगर आप छोड़ देते हो, देन देयर इट बिकम्स एन एग्रेवेटेड ऑफेंस। ये सारी चीजें 2013 के बाद ही आई हैं, पहले नहीं थी। पहले सिर्फ रेप था और उसकी पनिशमेंट थी। देन 376। Can I add something? There was Yes, a sir. case of I think there was a nurse, जिसका केस हुआ था, she was left in the vegetative state by one of the hospital staff who had raped her, and for long number of years she was there. अभी डेथ हुई। हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं सर, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनके अंदर नर्स का एक केस है। एक केस मैंने देखा, इतना इतना बुरा, इतना गंदा केस, वेयर दिस मैन हु वाज रनिंग एन एनजीओ फॉर ओल्ड ladies and gents, he had been raping 5 or 6 ladies who could not walk, talk, or do anything. Old ladies, these were 80 90 years की ladies. तो बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, तो हम रीड करेंगे तो हमें ये सारे ही केसेस रीड करने पड़ेंगे। कई सारों को देख के तो यू एक्चुअली गेट गूज बम्प्स कि मतलब दिस इज आल्सो पॉसिबल। सो 376A, this is one of the aggravated offenses. Then 376B is sexual intercourse by husband upon his wife during separation. Judicial separation हम सबको पता है। Anybody which section of HMA? Which section of HMA talks about judicial separation? Section 10. 13 में ही है। Section 10. 10 सर, 10 में 13 डिवोर्स के बारे में। सो आपका 9 is restitution of conjugal rights, 10 is judicial separation, 11 में voidable, 11 में void, 12 में voidable and 13 में divorce, ठीक है। सो जुडिशियल सेपरेशन की अगर आप डिक्री ले चुके हो और you are living apart now, without your wife's consent you go and have intercourse with her. अब आप ये नहीं कह सकते कि वो मेरी वाइफ है and she is above 18 years. Now, even if she's above 18 years, because you were set apart due to a decree of judicial separation, you cannot take that defense. So you will come under this section and it will be considered as rape. 376 talks about sexual intercourse by a person in authority. We've already talked in length about it, that when there's a sexual intercourse by a person who has influence on you, we've already talked about it. IG Saab and boss, intern, judge sab, and all that. So you'll land under 376C. Then comes D, which is gang rape. Gang rape is whenever there is more than one person who's raping a girl. DA is when gang rape happens with a girl less than 16 years, and DB when it happens with less than 12 years. So it keeps on aggravating in terms of punishment that is awarded. ठीक है। So इसमें life, death, minimum 20 years सब कुछ आ जाता है। और
इन केसेस में जितना भी फाइन पड़ता है दैट फाइन इज गिवन एज कॉम्पनसेशन टू द लेडी, नहीं तो नॉर्मली फाइन गोज टू द स्टेट, बट इन केसेस में इट इज ऑलवेज द लेडी हु गेट्स इट। कैन एनीबडी टेल मी कौन सा सीआरपीसी का सेक्शन है जो इस बारे में बात करता है कि अंडर ऑल दीज केसेस द फाइन इज गोना गो टू द लेडी एज कॉम्पनसेशन? तब तक मैं थोड़ी सी स्क्रीन साफ कर लेता हूँ, इफ एनीबडी वांट्स टू सर्च फॉर इट और समथिंग। थ्री 357 बी में कुछ लिखा है क्या? 357 बी, वैसे तो आईपीसी के इन सेक्शंस में भी लिखा हुआ है कि रिहैबिलिटेशन वगैरह के लिए यूज किया जाएगा फाइन को। 357 बी सही है। ठीक है सर, 357 बी, सो एवरीबडी 357 बी टॉक्स अबाउट दिस। In the payment to any person of compensation for any loss or injury caused by the offense. राइट, वही है ना? हाँ जी सर। और कॉम्पेंसेशन का क्लॉज कौन सा है जो है 357C, वो बाकी के ऑफेंसेस में। 357C is for general offenses, 357B is for offenses, these offenses which are heinous offenses, and normally 357 talks about कैसे कैसे आप कॉम्पेंसेशन दोगे, कैसे कैसे आप फाइन दोगे एंड ऑल दैट। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड। Then comes 376E, which is a punishment for repeat offenders, where जैसे सर ने बताया कि there was someone who was raping people in the hospital for 8 or 9 years। वो एक तो अगर उन्होंने ऐसा किया है और वो एक दो बार से ज्यादा फंस गए हैं तो दे बिकम रिपीट ऑफेंडर्स। अच्छा, आईपीसी में अभी अभी हमने कहाँ पे देखा था रिपीट ऑफेंडर्स के लिए एनहांस्ड पनिशमेंट मिलेगी? आईपीसी का कोई सेक्शन था ऐसा जो हमने पढ़ा है, enhanced punishment for repeat offenders? 75. 75, 75 में लिखा है। ठीक है, चलो let's go ahead. Now comes unnatural offenses. Now we have talked about rape which happens between a man and a woman when there is no consent. Now comes unnatural offense, which as has been defined is a sexual activity which is done against the course of nature. अब ये क्योंकि एक पुराना लॉ है इसलिए उस टाइम पे ये कहा जाता था दैट दिस इज अगेंस्ट द नेचर दैट यू आर हैविंग एनल सेक्स और ओरल सेक्स और एनी अदर काइंड ऑफ सेक्स अदर देन विजाइनल सेक्स। अब जो ये केसेस हुए हैं नाज फाउंडेशन एंड देन सुरेश कौशल एंड नवतेज सिंह जौहर, ये 3 केसेस हुए हैं जिन केसेस में अल्टीमेटली अब 377 को पार्शियली रेड डाउन कर दिया जा चुका है, इज बिन डीक्रिमिनलाइज्ड। तो डीक्रिमिनलाइज हुआ क्या है? राइट डाउन द साइटेशन एक बार उस पे लिखेंगे आप? सर नाज फाउंडेशन, नाज एक तो लिखो नाज फाउंडेशन, एक सुरेश कौशल। नाज फाउंडेशन आई थिंक 2011 का है, सुरेश कौशल 2014 का है। एंड देन लास्ट में है नवतेज सिंह जौहर। नाज फाउंडेशन, सुरेश कौशल, स्पेलिंग बोलना जरा, कौन सा? NAZ सर, अच्छा, नाज फाउंडेशन। NAZ, नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली 2010 CRLJ 94। नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली 2010 CRLJ 94 दिल्ली। इसमें सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। उन्होंने बोला कि इट्स ओके फॉर 2 men to have sex, for 2 men to have anal sex because that is the only sex that they can have. ठीक है, then came सुरेश कुमार कौशल versus नाज फाउंडेशन 2014।
सुप्रीम कोर्ट CRLJ 784। इस केस में इसको ओवरटर्न कर दिया गया एंड दे सेड नहीं, 377 is a crime, still a crime in IPC. And then at the end came Navtej Singh Johar versus Union of India. Supreme Court AIR 4321। और इन्होंने इसको फिर से डिक्रिमिनलाइज कर दिया, जिसमें इन्होंने कहा, इसका दोबारा बोलना जरा, AIR सुप्रीम कोर्ट। सर सुप्रीम कोर्ट AIR 4321। So this was the last case in the series, जिसमें ultimately in 2018 Supreme Court said that 377 का एक पार्ट जो है वो हमने डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, पूरा पार्ट नहीं किया है। तो इसमें और कौन कौन से पार्ट्स थे? वन was sexual intercourse between man and a man, then was sexual intercourse between a man and an animal. So if there is someone so messed up enough to have sexual intercourse with animals, that is a crime still. So अभी recent cases हुए थे where a person was involving himself into sexual intercourse with a cow, and then there was another case जिसमें there was a lady who was indulging in sexual intercourse with a horse. So ये अभी भी crime है. So bestiality, sodomy वगैरह ये सारी चीजें अभी भी crime है. But what is not a crime now is a man who is having sex with another man who consents. If there is no consent, it's then again a crime. So there has to be consent between the two male persons as well. ठीक है? So ये हो गया 377. Right? So let's go ahead. यहां तक तो आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. इजी रिलेटेबल सेक्शंस हैं, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, बार बार पढ़ते ही रहते हैं ये सारी चीजें. Now let's talk about chapter 17, which talks about offenses against property. अभी तक हमने ह्यूमन बॉडी देखा, which was from 299 to 377. स्टार्ट किया था कल्पेबल होमिसाइड से, एंड किया हमने अननेचुरल ऑफेंसेस पे. नाउ वी हैव कम ऑन टू थेफ्ट. थेफ्ट में हम सब लोग जानते हैं थेफ्ट क्या होती है, चोरी होती है. समवन टेक्स अवे समथिंग दैट बिलोंग्स टू यू. अब इसके अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं? दैट समथिंग हैज बीन टेकन विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसऑनेस्टली हमने इसकी डेफिनेशन कहीं पे देखी थी क्या? डिसऑनेस्ट की डेफिनेशन हमने आईपीसी में कहीं पे देखी है क्या? और साथ में मूवेबल प्रॉपर्टी की भी हमने डेफिनेशन कहीं पे देखी है क्या? 22 में तो मूवेबल प्रॉपर्टी है. 24 में डिसऑनेस्टली है. करेक्ट. 24 में डिसऑनेस्टली है, 25 में फ्रॉडुलेंटली है, उसकी अभी हमें जरूरत नहीं है. सो पहला एलिमेंट क्या है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन. आपकी इंटेंशन खराब होनी चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट. Because if I am in good faith and राजेश सर मेरे यहाँ डिनर करने आए हैं, he goes to the washroom and मैं तब तक मेरे को निकलना है यहाँ से, एंड मैं फोन उठाता हूँ एंड मैं इनका फोन उठा के चलता बनता हूँ. So I did not have the intent to actually take his mobile phone with me or to steal it, but because I thought that it was mine, I took it and I flew. So that is not theft. So first of all, it has to be a dishonest intention. Secondly, it has to be a movable property. Theft कभी भी immovable property ही नहीं होती. Extortion में भले ही आप immovable property भी extort कर सकते हो by the way of sale deeds. ठीक है, मगर theft में, robbery में and robbery by theft में, dacoity में, ये सब चीजों में कभी भी immovable property नहीं होती. ठीक है.
अब आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट हो गई, चेक। मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, चेक। नाउ दिस मूवेबल प्रॉपर्टी हैज टू बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन। अब किसी ना किसी का इसके ऊपर पोजेशन होना जरूरी है। डज नॉट मैटर इफ द पर्सन इज ओनर और नॉट। ठीक है। अब अगर मेरे पास विवेक आता है एंड विवेक हैज गिवन मी सम पेपर्स, he has come to me as a client, he has given me some papers. Now those papers are in my possession because of so and so intention which Sulakshana ji knows. She wants to take those papers out of my possession, and dishonestly she takes it out of my possession without letting me know. I am not the owner of these papers, but these papers are in my settled possession. So there's a concept called settled possession. Vivek ने मेरे को दिया है ना, he is the right person to have the possession, and he, in his all senses, because of relevant reasons, has given those papers to me. So I have the settled possession. Now, if out of my settled possession these papers are taken away by someone with dishonest intentions, it is again a theft. So तीसरा एलिमेंट क्या है? पोजेशन। ठीक है, तो पोजेशन भी चेक हो गया। नाउ फोर्थ एलिमेंट क्या है? टेकिंग, मूविंग, मूविंग और टेकिंग। नाउ आई हैव टू मूव दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर वो प्रॉपर्टी मैंने मूव नहीं करी है तो इट्स नॉट अ थेफ्ट। ठीक है। सुलक्षणा जी ऑफिस में आई, उन्होंने बहुत देर मेरे से बातचीत करी, किसी ना किसी तरह मुझे बोला कॉफी ले आओ, चाय ले आओ। मैंने कहा कुछ नहीं है घर पे, ना चीनी है, ना दूध है, ना पानी है, कुछ नहीं है। गया ही नहीं मैं। अब वो नहीं उठा पाई सामान, शी वॉज वेरी क्लोज टू इट, शी कुड नॉट मूव इट, तो चोरी नहीं हुई। ठीक है। सो दिस इज नॉट थेफ्ट बिकॉज देयर हैज टू बी मूविंग और टेकिंग ऑफ एनीथिंग। ठीक है। सो अगर एक पेड़ है, अगर मेरे घर में बहुत अच्छा पेड़ उग रहा है एंड मेरे घर पे चोरी करना चाहते हैं, श्रद्धा वांट्स टू स्टील फ्रूट्स फ्रॉम माय ट्री। ठीक है। दीवार वगैरह सब लांग के आ गई है श्रद्धा, और यहाँ आके पता चलता है कि यार ये पेड़ दूर से तो पतला सा लग रहा था, यहाँ तो इसका द दिस थिंग ट्रंक इज वेरी हार्ड टू कट और हार्ड टू जस्ट टेक अवे, एंड शी कैन नॉट टेक अवे। इज दिस स्टीलिंग? अभी तक क्या स्टीलिंग हुई है? इज दैट थेफ्ट? नो थेफ्ट, बिकॉज नो मूविंग। नाउ इफ, अब श्रद्धा को क्या लगता है? शी थिंक्स यार ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं पेड़ नहीं ले जा पा रही हूँ, अपने गार्डन तक ले जाके उसमें नहीं गाड़ पाऊंगी, लेट्स डू वन थिंग, मैं यहाँ से सारे फ्रूट्स तोड़ के ले जाती हूँ। इज दैट थेफ्ट? नाउ शी हैज मूव्ड समथिंग, दैट्स थेफ्ट। और या फिर जुनूनी है, एकदम बिल्कुल जुनून है चोरी करने का श्रद्धा के अंदर, तो उसने क्या किया कि लेके आई घर से चाकू और यहाँ से काटा इसको तने से और ये पेड़ उठा के ले गई। That is moving again, although tree is something that cannot be moved in itself because it is attached to earth. It is something which cannot be moved easily. 22 की अगर आप 22 में जो डेफिनेशन है उसे पढ़ोगे तो वहां पे वो बता देगा कि कोई भी चीज अटैच्ड है तो वो दैट्स नॉट मूवेबल। ठीक है। नाउ दिस ट्री इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली अप टू द पॉइंट दैट इट इज नॉट डिटैच्ड। अगर ये डिटैच कर दिया गया है तो ये अपने आप में एक मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन इट इज अ थेफ्ट। ठीक है। सो अभी तक हमने ये सारे के सारे एलिमेंट्स पूरे कर लिए। डिसऑनेस्टली, मूवेबल प्रॉपर्टी, आउट ऑफ द पोजेशन, मूविंग एंड टेकिंग। ठीक है। लास्ट जो हमारा इसके अंदर एक एलिमेंट है दैट इज विदाउट कंसेंट। ठीक है। नाउ आई एम सीइंग दैट श्रद्धा इज स्टीलिंग माय ट्री, द फ्रूट्स और द ट्रीज, एंड श्रद्धा ऑल्सो कम्स टू नो दैट आई एम वॉचिंग ऊपर से, एंड फिर मैं कहता हूँ चल ठीक है यार ले जाओ, इट्स ओके। तो नाउ आई हैव कंसेंटेड, अब ले जाओ कोई बात नहीं, इट्स नॉट थेफ्ट बिकॉज देयर इज नो, इट्स नॉट बीइंग डन विदाउट कंसेंट नाउ। ठीक है। सो दीज आर ऑल दी एसेंशियल्स ऑफ थेफ्ट। नाउ बहुत इजी है, थेफ्ट में तो ज्यादा हमें बातचीत करने की जरूरत नहीं थी। थेफ्ट के लिए 378 है, 379 इज फॉर पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट। आई थिंक 2 साल की इसमें पनिशमेंट होती है। देन 380, 381 एंड 382 ये एग्रीवेटेड ऑफेंसेस। 380 टॉक्स अबाउट थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। अब ड्वेलिंग हाउस का मतलब क्या है? व्हेन पीपल आर लिविंग इन दैट हाउस।
someone's living, or someone is storing some goods. माने if it is a warehouse and I am keeping my goods there, I don't actually go and sleep there every day, then again it is a dwelling house. And now if गोपाल सर को नहीं लगाते इतना ऐसा चार्ज, विवेक आता है. सो विवेक कम्स टू द वेयर हाउस एंड वो वेयर हाउस से मेरा कुछ सामान लेके चला जाता है. नाउ ही कैन नॉट से दैट सर ये सिर्फ थेफ्ट है, इसमें ड्वेलिंग हाउस नहीं है, बिकॉज राघव वाज नॉट ड्वेलिंग इन द वेयर हाउस. ओके, सो आई विल से दैट नो, 380 says that dwelling house also includes where I store my property. ठीक है, सो प्रॉपर्टी स्टोर करना या जहां पे मैं वर्शिप करता हूं, टेम्पल हो गया, टेम्पल इज ऑल्सो अ ड्वेलिंग हाउस. ठीक है, सो एनी प्लेस लाइक दिस एंड आई स्टील समथिंग, इट बिकम्स अ थेफ्ट and it is an aggravated offense under 380. Then comes 381, which is theft by clerk, servant of property in possession of the master. Now I am an employee. Suppose Gopal sir के पास कोई intern है, and that intern, being that intern, steals away something, takes something dishonestly out of the possession of Gopal sir, which is movable. He has committed theft. And because he was an employee, it's an aggravated offense under 381. ये एग्रीवेटेड ना, ये एग्रीवेशन या जो भी कहते हैं, ऐसे ग्रेविटी जो ये बढ़ रही है यहाँ पे ऑफेंस की, ये आपको बाकी सारों में भी दिखाई देगी. जैसे मिस एप्रोप्रिएशन में जाएंगे तो मिस एप्रोप्रिएशन में भी यू विल फाइंड दैट देयर इज एन ऑफेंस वेयर मिस एप्रोप्रिएशन, ये सीबीटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज बीइंग डन बाय अ क्लर्क और सर्वेंट, बाय अ पब्लिक सर्वेंट. तो ये ग्रेविटी बढ़ती जाएगी. ठीक है, सो चीटिंग अगर हो रही है, चीटिंग इज डन बाय पर्सन हु इज whose interest the offender is bound to protect. Again, right? तो जिन जगहों पे you are someone who should not be committing any theft, you are in confidence, then उन जगहों पे एग्रीवेट हो जाता है ऑफेंस. ठीक है, एक्टिव कॉन्फिडेंस की प्रिजम्पशन कहाँ है एविडेंस एक्ट में? पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी. If there is someone in active confidence of some other and he is committing an offense, then the presumption of proving is on the person who is in the active confidence. कहाँ पे लिखा है ये? (111A) सेक्शन 111A. अच्छा, और अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर एक अनकॉन्शनेबल बार्गेन की बात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी करी गई है. वो कहाँ पे करी गई है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 16, अनड्यू इन्फ्लुएंस. ठीक है, लेट्स गो अहेड. 380 हो गया ड्वेलिंग हाउस. 381 व्हेन यू आर अ क्लर्क और सर्वेंट. 382 theft after preparation made for causing death, hurt or restraint in order to committing of theft. Now अभी अभी मेरे घर पे चोरी किसने करी थी? सुलक्षणा जी ने करी थी या श्रद्धा ने करी थी? श्रद्धा ने हाथ उठा दिया. श्रद्धा ने करी थी. श्रद्धा ने करी थी. So if now Shraddha has come to my house and she's here to pick the fruits out of my trees with dishonest intention, taking them out of my possession, then if she has come with a gun loaded, कि अगर मुझे रोका आज इसने फ्रूट्स ले जाने से, तो आई हैव दिस गन एंड आई एम गोना शूट हिम. सो शी हैज कम प्रिपेयर्ड टू कॉज माय डेथ और टू हर्ट मी और टू रिस्ट्रेन मी इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट. ठीक है, अगर कोई चोर आए हैं, रस्सी वगैरह सब लेके आए हैं घर पे बांधने के लिए, और सोते हुए लोगों को बांध दिया फटाफट से, टेप वगैरह लगा दी, तो दे हैव कम प्रिपेयर्ड. ठीक है, टू रिस्ट्रेन समवन और टू हर्ट समवन. सो दैट कम्स अंडर 382. अगर आप एकदम पहुंचे हुए चोर हैं और आप बिल्कुल प्रिपेयर होके आते हैं, देन यू कम अंडर 382, which is an aggravated offense. Now let's come to extortion. अभी हमने देखा कि थेफ्ट में क्या हुआ. Some ABC person came and the person took a movable property out of the possession. ठीक है ना, ये मेरा समझ लो कि this is my house एंड यहां से मेरी गाड़ी उठाई किसी ने और गाड़ी उठा के बाहर ले गया. मूवेबल प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, टेकिंग आउट ऑफ माय पोजेशन. ठीक है, हो गया थेफ्ट. ये थेफ्ट है. अब एक्सटॉर्शन क्या है?
एक्सटॉर्शन है जब किसी को डर दिखाया जाता है. व्हेन आई पुट समवन इन फियर of hurt or any other restraint or something like that, this person or any person that this person is interested in. अगर मेरे माँ बाप को ये बोला जाए कि मुझे कोई मारने वाला है और घर के कागज उनके नाम कर दिए जाए, मेरे माँ बाप तो कर देंगे मेरे ख्याल. वैसे नॉर्मली किसी बच्चे के अगर करे जाए तो वो लोग फटाफट से अपनी प्रॉपर्टी साइन करके दे देंगे. तो यहाँ पे क्या हुआ है अलग. देखो, ऑनेस्ट तो नहीं है इंटेंशन, ठीक है, डिसऑनेस्ट है. करेक्ट. कोई मूवेबल प्रॉपर्टी भी है, कागज हो गए या पैसे ले लो या कुछ भी ले लो, यहाँ पे इमूवेबल भी हो सकती है प्रॉपर्टी, ठीक है. प्रॉपर्टी पोजेशन के बाहर भी आ गई है, पोजेशन के बाहर भी आ गई है, कंसेंट भी नहीं है. तो डिफरेंस क्या है थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में? थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में डिफरेंस क्या रहेगा? फियर क्रिएट करना है, सॉरी सर. फियर क्रिएट कर रहा है ना, फियर. हाँ, एक डिफरेंस तो ये हो गया कि आई हैव क्रिएटेड अ फियर. एक डिफरेंस तो ये है. एक डिफरेंस ये भी हो गया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आ गई इसके अंदर. और एक मेन डिफरेंस क्या है थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच में? सिक्योरिटी होनी चाहिए, सॉरी सर. वैल्यूएबल सिक्योरिटी होनी चाहिए. वैल्यूएबल तो सर मूवेबल भी होती है, मूवेबल प्रॉपर्टीज भी वैल्यूएबल होती हैं. Victim himself is knowledge. नॉलेज तो थेफ्ट में भी है. आई हैव द नॉलेज दैट आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग. इट्स नॉट ओनली माय इंटेंशन. Sir, the victim himself is handing over. Correct, exactly. This was Vivek, I think. Yes, sir. Right, exactly. So यहाँ पे क्या हो रहा है? The victim himself is handing over the property. Delivery हो रही है यहाँ पे. यहाँ पे moving and taking नहीं हो रही है. The person who is being extorted from is the person who is actually delivering the property out of his own possession. ठीक है. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमने 94 में देखा था कि कंसेंट अंडर थ्रेट इज नो कंसेंट, वो यहाँ पे लागू होता है. द पर्सन इज कंसेंटिंग टू गिव अवे द प्रॉपर्टी, बट दैट कंसेंट इज बिकॉज ऑफ द फियर दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय द एक्सटॉर्शनिस्ट, एंड दैट इज व्हाई द पर्सन इज डिलीवरिंग आउट द प्रॉपर्टी, एंड दैट मेक्स एक्सटॉर्शन एन ऑफेंस व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम थेफ्ट. सो ये तीन चीजें अलग हैं इसमें. फियर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एंड मेन बात है कि यहाँ पे डिलीवरी है. इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे किया आपने? सर, इमूवेबल इस तरह से कि मैं किसी को डर दिखा के उससे सेल डीड साइन करा सकता हूँ ना. अच्छा, सेल डीड साइन करके दो, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी मैंने एक तरह से निकाल ली ना. ये चीज मैं थेफ्ट में तो नहीं कर सकता कि किसी को डराऊं और बोलूं अपना, सॉरी उसमें तो डराना है ही नहीं कि मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी उठा के ले जाऊं किसी की पोजीशन में से. वो नहीं हो सकता. 383 का डेफिनेशन में इट टॉक्स ऑफ प्रॉपर्टी, डज नॉट से इमूवेबल प्रॉपर्टी. व्हाट यू आर सेइंग इज वेरी राइट, बट वो सर वैल्यूएबल सिक्योरिटी लिखा है वहां पे. हाँ. तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी तो है ये. तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी से वो क्या लेके जाएंगे? यही तो लेके जाएंगे. विल वगैरह ले गए, सेल डीड ले गए, ये सारी वैल्यूएबल सिक्योरिटीज है. ठीक है. तो वहां पे प्रॉपर्टी लिखा है. अब आप इसी तरह से चेक करो कि थेफ्ट में क्या लिखा है. टंडन सर. हाँ, मैं देख रहा हूँ. हाँ जी, 378 चेक करो. 378 उसमें तो मूवेबल प्रॉपर्टी लिखा है. हाँ, तो लैंग्वेज चेंज हो गई ना. ऊपर मूवेबल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी लिखा है. So if the legislature wanted that there has to be movable and not movable का difference, तो इसीलिए उन्होंने movable and not movable वाला बात करी है. They have omitted out. राइट है सर. ठीक है. किसी और ने भी अभी माइक ऑन किया था. somebody who wants to ask or contribute. एनी प्रॉपर्टी लिखा है सर 383 में. हाँ करेक्ट सर, करेक्ट. 383 में एनी प्रॉपर्टी है. एनी प्रॉपर्टी में सब आ गए. सही बात है. अब ये प्रॉपर्टी, चलो ठीक है. अच्छा, ये जो स्टीलिंग ऑफ प्रॉपर्टी है, स्टोलन प्रॉपर्टी वगैरह की हमने कोई प्रिजम्पशन भी देखी थी एविडेंस एक्ट में.
स्टोलन प्रॉपर्टी, पोजेशन, ओनरशिप, ये सारी चीजों की कोई प्रिजम्पशन थी क्या? I think 114 में है। सही बात है सर। 110 है क्या? 110 और 114 एक साथ है। इन दोनों को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पोजेशन का मतलब ओनरशिप होता है, और if there is someone who's caught with stolen property, a court can make a presumption that that person is the one who has stolen it. ये presumption ले सकती है कोर्ट। ये 110 और 114 को हम एक साथ पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। ठीक है। So if there is a loud din in a society and I am the police officer, I see that Vivek is running out of that society. ठीक है, some place nearby, and he is caught. और जैसे ही पकड़ा जाता है तो उसके पास फोन मिलते हैं, 3 फोन एक साथ मिलते हैं, और साथ में कुछ और चीजें भी मिलती हैं बैग में पड़ी हुई जो घर का सामान टाइप का होता है। तो 110 पहली चीज क्या कहता है कि जनरल प्रिजम्पशन है दैट इफ विवेक इज कैरिंग दिस प्रॉपर्टी विद हिम, ही इज द ओनर। बट 114 qualifies, and 114 of the Indian Evidence Act says that if the circumstances indicate that there has been a theft nearby in the society and Vivek is caught stealing, then there is a safe presumption that can be made that Vivek is this thief. ठीक है ना? तो फिर पुलिस वाले पकड़ेंगे, पकड़ के ले जाएंगे, ये प्रॉपर्टी रिस्टोर करेंगे एंड स्टफ लाइक दैट। ट्रायल चलेगा और बाद में कोर्ट भी रिस्टोर कर सकती है, एनीथिंग कैन हैपन। अच्छा, कोर्ट अगर डिस्पोज ऑफ वगैरह करना चाहती है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के प्रोविजंस कहाँ पे हैं सीआरपीसी में? डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के प्रोविजन सीआरपीसी में जब अल्टीमेटली पता चलेगा कि विवेक इज द कन्विक्ट एंड दिस प्रॉपर्टी इज टेकन फ्रॉम हिम एंड द प्रॉपर्टी हैज टू बी रिस्टोर्ड, तो फिर कौन से सेक्शंस में रेस्टोरेशन वगैरह की गाइडलाइंस कहाँ पे हैं? गोपाल सर कुछ कह रहे थे आप? 451 से है सर। करेक्ट सर, 451 से लेके 459 तक सेक्शंस हैं। 451 से लेके 459 ऑफ सीआरपीसी, स्टार्टिंग फ्रॉम 451 विच इज ड्यूरिंग द ट्रायल, पेंडिंग ट्रायल जब आपको किसी चीज को डिस्पोज ऑफ करना होता है। 452 में है एट द एंड ऑफ द ट्रायल, व्हेन एट द एंड ऑफ द ट्रायल यू हैव टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, देन उसके बाद उसका रेस्टोरेशन, अपील, स्टफ एंड स्टफ है, बाकी चीजें 459 पे खत्म होता है, जिसमें पेरिशेबल प्रॉपर्टी के डिस्पोजल के बारे में बात करी गई है। राइट सर? One question here. हाँ जी सर। ये जैसे इसमें I don't think इसमें सर आपकी आवाज नहीं आ रही। I don't think illustrations में दिया है जैसे section 114, but a lot of time in movies it is shown. You know, if you see old movies and all, it is shown that the man is caught, he is trying to save somebody, suddenly he finds there is somebody who has stabbed him. Now he tries to take out the knife, suddenly police comes, it will be presumed that he has killed that man until unless proven otherwise. So would it be taken under 114? हाँ सर, 104 एक जनरल रूल है विच सेज कि अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको कुछ दिख रहा है तो प्रिज्यूम कर सकते हो। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जनरली प्रिज्यूम कर सकते हो प्राइमा फेसी, बट देन देयर इज एवरीथिंग दैट कैन बी ब्रॉट टू रिबट दिस थिंग। बाद में ट्रायल में कुछ भी लाया। No, it is not only restricted to the illustration, it is a general type of thing. हाँ, it's general. These burden of proof वाले सारे provisions are very general. They talk about general things. अब उसी में आप देखोगे 114 में ना, इसकी illustrations देखो, FGHI तक इसकी illustrations हैं, और उसके बाद उसके exceptions की भी illustrations हैं। अभी तो फिर भी I think this law has come, Supreme Court judgment है, पहले जो अपना accident case होते थे, people never used to pick them up from the road side. कि accident हुआ है वो लेके, one was because of the बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे, and secondly if something happens to that accident victim while he is being taken there, the presumption might lie. I think that was the reason. हाँ, Also, you know, लोगों को ये तो नहीं पता होता कि ऐसा प्रिजम्पशन वगैरह हो जाएगा, बट एटलीस्ट हाँ ये है कि if the law is set in motion, then 114
at least lays down a general guideline that if something seems to be a part of a general transaction, then you can presume that it is the part of the general transaction. तो इतना तो है ही obviously. अच्छा, जो आपने बोला कि यहाँ पे उसके एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, तो 114 ने उसके एक्सेप्शंस दिए हैं, इलस्ट्रेशंस के बाद उसके एक्सेप्शंस भी हैं, चेक करना. इलस्ट्रेशंस जहाँ खत्म होती हैं उसके बाद लिखा है these are certain circumstances that court should take into consideration. ये जनरल चीजें आप नहीं लेके चल सकते, ठीक है ना. तो वो भी लिखा हुआ है वहां पे. ओके, लेट्स गेट बैक टू आईपीसी. ज्यादा डिविएट हो जाते हैं हम थोड़े से. एनीवेज, अब हम आगे एक्सटॉर्शन पे. एक्सटॉर्शन हमने पता कर लिया कि एक्सटॉर्शन क्या है, ठीक है. सो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, फियर क्रिएट करेंगे आप. You will induce the person to deliver the property himself. The property is going to be any property plus a valuable security, and इस तरह से extortion का offense complete होगा. Then we come to 384, which talks about punishment for extortion. I think it's 3 years. Theft के लिए 2 साल होती है, extortion के लिए 3 साल होती है. 385 के आगे we have aggravating offenses. 385 talks about putting person in fear of injury in order to commit extortion. अब आपने 385 और 386 को ध्यान से देखोगे तो 385 में you are only putting the person in fear. 386 में you are actually extorting. Then 387 में again you are putting the person in fear, and 388 में you are actually extorting. And then 389 में again you are putting the person in fear. So जब रीड करेंगे तो समझ आ जाएगा कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ इनकी पनिशमेंट्स चेंज होती रहेंगी. nothing will change, except of course what kind of extortion you are doing. It's on fear of death or grievous hurt, threat of accusation, ये सारी चीजें, ठीक है. तो बस वो चेंज होता रहेगा, nothing else to read about. Let's come to 390. 390 है रॉबरी. रॉबरी हम सब लोगों को ऑलमोस्ट सबको पता ही है, सब लोगों ने आसपास देखा ही है कैसे होता है, क्या होता है. रॉबरी का बेसिक मीनिंग है, बेसिक डेफिनेशन है, whenever you add violence to either theft or to extortion. So basically रॉबरी अपने आप में थेफ्ट या एक्सटॉर्शन ही है, बस उसमें आपने क्या ऐड कर दिया है, वायलेंस. सो अगर आपने इंस्टेंट फियर दिया है किसी को और तब जाके आप किसी के सर पे बंदूक रखते हो गाड़ी में, एंड देन यू टेल द पर्सन की हैंड ओवर द प्रॉपर्टी टू मी, हैंड ओवर वट एवर यू हैव टू मी, this is instant fear, this is instant fear of injury, this is violence. So extortion has now turned into robbery. Same way, if you are going and stealing something from someone's house and you are violent there, आप मार पीट के लेके आते हो चीजें, then you have committed not theft, it's an aggravated offense. Theft सिर्फ तब होगी जब आप छुपके से गए और छुपके से सामान लेके आ गए, मगर आपने वहां पे अगर मार पिटाई भी कर दी है, then it becomes a robbery. Similarly, extortion, अगर मैंने फोन पे विवेक को कॉल किया कि either you give me the property or I am gonna accuse you of so and so whatever, ठीक है. So ये क्या है, extortion है या robbery है? Is this extortion or robbery? You just come again. सर मैंने विवेक को कॉल किया और मैंने विवेक को बोला कि कल कोर्ट में आ जाना, या फिर कल मेरे को ये सामान मेरे घर पे देके चले जाना, ठीक है. से सपोज विवेक इज अ वॉच मेकर, गोपाल सर ने अपनी गोल्ड डायमंड की घड़ी 15-20 लाख की घड़ी दी है विवेक को ठीक करने के लिए, और मुझे पता है कि ये घड़ी दी है. आई कॉल विवेक एंड आई टेल हिम कि सी Gopal sir has some debt that he owes to me, and I want you to give his watch to me, or else I will accuse you of certain offense or something. What is this? Extortion. Extortion. Now, if I say that give this to me
otherwise I will stab you tomorrow in the daylight. I will come to your home and kill everyone in your home. What is that? Again, Agree. Robbery, sir. Robbery. सब लोग रॉबरी के साथ हैं? जी सर. सब गलत है. सो ये रॉबरी नहीं है, बिकॉज रॉबरी में इंस्टेंट वर्ड यूज किया गया है. इंस्टेंट होना चाहिए. द वर्ड यूज्ड इज इंस्टेंट फियर. दैट वे इफ आई एम डूइंग अ रॉबरी, जो एक एक्सटॉर्शन में कर रहा हूं रॉबरी में, मुझे वहां प्रेजेंट होना जरूरी है. My presence is important. That is how I will be able to give an instant fear of death or injury. ठीक है? Otherwise, मैंने किसी को अगवा कर रखा है और मैं बोलता हूं कि मेरे पास ही है ये तेरा बच्चा है या something like that, and I'm going to shoot him right now. I have my gun on his head and I'm going to kill him. This is instant fear to someone that you're interested in. Then again, it's robbery. ठीक है? So the difference between extortion and robbery is, extortion में it is only a fear and injury or injury, fear of injury, and robbery में it is instant fear. Instant आपको hurt होगी, instant injury होगी. मिल गया सबको? इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं. दो चीजों में कंफ्यूज होते हैं. पहली चीज तो हम यही भूल जाते हैं कि रॉबरी इन इटसेल्फ इज थेफ्ट और एक्सटॉर्शन. रॉबरी अपने आप में कोई अलग से कोई चीज नहीं है. रॉबरी इज एन एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन. और दूसरी चीज, जब रॉबरी थेफ्ट है तो वहां पे आप कुछ ना कुछ वायलेंस करके आते हो, और जब वो एक्सटॉर्शन है तो आप इंस्टेंट फियर या इंस्टेंट हर्ट वगैरह का इंतजाम करते हो. उसमें कैरी अवे है. हाँ हाँ, इसमें इंड्यूसिंग टू डिलीवर है मेन डिस्टिंक्शन. हाँ वो तो है ही सर. वो तो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच का डिफरेंस है. थेफ्ट में यू कैरी इट अवे विद यू. एक्सटॉर्शन में यू इंड्यूस द पर्सन टू डिलीवर. वो तो बेसिक डिफरेंस है ही दोनों में. व्हेन यू कम टू रॉबरी तो उसमें आप इंस्टेंट और जोड़ देते हो. वायलेंस, इंस्टेंट वायलेंस आप अलग से जोड़ देते हो दोनों केसेस में. ठीक है? किसी को कोई इशू इसमें? Anybody? I think people should have questions here. You should have questions here. If you can imagine a scenario, if you're getting confused, if you want to ask a question here. इसमें एक चीज है, दोनों में आ रहा है instant, instant death, instant hurt, instant wrongful restraint when theft is robbery, and when extortion is robbery, उसमें भी instant death, instant hurt, instant wrongful restraint. यही चीज में कंफ्यूज हूं. दोनों में आ रहा है. Only difference I think is उसमें you carry away, इसमें you deliver. हाँ हाँ सर, वही कह रहा हूँ सर, वही कह रहा हूँ. यही कंफ्यूजन होती है. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 378 अलग है, 383 अलग है, और 390 अलग है. 378 थेफ्ट है जहां पे यू टेक समथिंग अवे. 383 is extortion where you ask the person to deliver. ठीक है? So ये difference तो रहेगा ही रहेगा. Theft is when you take away, extortion is when you deliver. When we talk about 390, Tandon sir, when we talk about 390 robbery, इसमें ये अपनी ही जगह बने हुए हैं. दोनों अपनी जगह पे सेम हैं. ये यहाँ पे ले जाना रहेगा, यहाँ पे इंड्यूसमेंट रहेगा. The only thing that gets added, कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं होता, कुछ भी हटा नहीं रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं. Only thing that gets added is instant violence. That's it. Instant fear. Instant fear. उसी टाइम आपको इंजरी होने वाली है. Only thing that is gonna be added. So डिफरेंस तो वो ही रहेगा. थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का डिफरेंस हमेशा वो ही रहेगा. थेफ्ट इज ऑलवेज व्हेन यू आर टेकिंग इट, एंड एक्सटॉर्शन इज व्हेन यू आर मेकिंग समवन डिलीवर इट.
I think the better word would be instant threat of violence, not violence. Violence एक्शन में हुआ नहीं है. हाँ हाँ Instant ऑब्वियसली threat सर, of आप violence. अगर आप डायरेक्ट मार ही दोगे तो वो तो मर्डर ही हो गया ना. अभी तो आपने बंदे को उस टाइम इंस्टेंट वायलेंस का फियर देना, दैट इज व्हाट मेक्स एन ऑफेंस एक्सटॉर्शन और रॉबरी. मतलब एक्चुअल में वायलेंस नहीं हुआ है, इंस्टेंट फियर ऑफ वायलेंस. करेक्ट. क्योंकि यहाँ पे ऑफेंस क्या है, यहाँ पे ऑफेंस किसी को असल में इंजर करना नहीं है. यहाँ पे ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी. अगर आपने ये डर दिखा के आप प्रॉपर्टी ले गए तो रॉबरी होगी. आपको सच में इंजर करना नहीं है, आपको सच में किसी को मारना नहीं है. इट्स ओनली द फियर, एंड इफ दैट फियर इज डिस्टेंट देन इट इज ओनली एक्सटॉर्शन. इफ दैट फियर इज इंस्टेंट, that very point of time, then it is a robbery. ठीक है सर. ठीक है. सो वी हैव गिवन इनफ टाइम टू दीज टू. तो मेरे ख्याल अब इसमें फिर आगे कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए. बाद में वैसे तो हम अच्छे से इन डेप्थ करेंगे सर. नाउ वी कम टू एग्रीवेटेड फॉर्म्स. हमने देख ली इसकी. रॉबरी पे आ जाते हैं. रॉबरी के बाद 91 है डेकॉइटी. डेकॉइटी कुछ नहीं है. जब भी 5 लोग मिलकर रॉबरी करेंगे. पहले हमने 378 383 देखा, वो अपने आप में एक स्टैटिक ऑफेंस था. उसको एग्रेवेट कहाँ पे किया हमने, रॉबरी में वॉयलेंस डाल के. और जब हम रॉबरी में 4 से ज्यादा लोग डाल लेंगे तो हम रॉबरी को एक स्टेप ऊपर ले जाएंगे और इसे डेकॉइटी कहेंगे. ठीक है. सो first thing what I do is, first thing is when Shraddha came to my home, Shraddha came to steal something. She came under 378. She took things away. That was just theft. After that, what she did, the next day she came. उसने मुझे बोला कि बेटा फ्रूट्स वगैरह जो है मेरे को थैली में डाल के दे दे, अभी मेहनत करने का मेरे को मन नहीं है, सामान निकाल के दो. ठीक है. She put me in fear, or else I will kick your butt or something. Then I give it to her. That's extortion. Now the next thing that happens is, the other day she comes to the house. वो जाती है सामान लेने, मैं बोलता हूँ कि नहीं लेना, and she beats me up. And then she takes it away. It becomes robbery. ठीक है. And उसके साथ extortion वाली robbery जब वो करेंगी तो वो मुझे instant fear देगी that I'm gonna beat you up right now, right here, give it to me. That becomes extortion वाली robbery. So ये 4 steps याद रखने हैं. अब now Shraddha comes with all her friends कि the fruits are very good, they are good quality, now we all want it. Now 4 or more people come, take the fruits away, and there is some violence and etc. That becomes a dacoity. ठीक है. So these 5 levels should be very clear. 378, 383, 390 and 391. And 390 की 2 जो हमने देखी, एक्सटॉर्शन वाली और थेफ्ट वाली. ठीक है. इसमें डेप्थ में हम अब बाद में जाएंगे. अब इसमें हम ज्यादा जाएंगे तो फिर हम यहीं रह जाएंगे. ठीक है. Let's go ahead. 392 talks about punishment for robbery. And 395 talks about punishment for dacoity. इनको कनेक्ट कर लेना. 390 को 392 के साथ, 391 को 395 के साथ. ये क्योंकि हम ज्यादातर भूल जाते हैं. 390 has to be connected with 392 and 391 has to be connected with 395. After that, 393 जो है that talks about attempt to commit robbery. अब यहाँ पे देखो attempt अलग से दे दिया इन्होंने, अलग से एक स्पेशल सेक्शन बनाया है इसके लिए. अगर ये स्पेशल सेक्शन ना हो तो हम कौन से सेक्शन में जाएंगे? अगर ये स्पेशल सेक्शन यहाँ पे ना होता और किसी ने रॉबरी का अटेम्प्ट किया होता तो हम कौन से सेक्शन में जाते पनिशमेंट देने के लिए? 511 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी. अब यहाँ पे इन्होंने अलग से दिया है. ये कुछ कुछ जगहों पे ये कि इन्होंने अलग से ये बनाए हैं ऑफेंसेस, क्योंकि ऐसा होता है कई बार. पीपल कम ट्राई टू कमिट अ डेकॉइटी एंड दे विल बी वेव्ड ऑफ बाय
a crowd or by police nearby or the person himself is a hero, तो they will be, उनको भगा दिया जाएगा, डेकॉइटी पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये अक्सर होता है, इन्होंने अलग से एक अटेम्प्ट को अलग से यहाँ पे एक सेक्शन में डाल दिया। सो अगर यहाँ पे अलग से है तो हम उसकी पनिशमेंट फॉलो करेंगे, अगर अलग से नहीं दिया हुआ तो हम सेक्शन 511 में चले जाएंगे आईपीसी के, राइट। Then we come to 394 which talks about voluntarily causing hurt in committing a robbery. अब सर देखो, आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया सर, डाउट नहीं, जो आपने बहुत अच्छा एक कंट्रीब्यूशन किया बीच में, voluntarily causing hurt in committing robbery। तो हमें हर्ट करना जरूरी नहीं है, रॉबरी तो सिर्फ फियर दिखा रही है, रॉबरी तो तब हो जाएगा जब फियर दिखाया। अगर आप हर्ट कर दोगे तो वो अलग से एक क्राइम बन गया, साथ में आपने हर्ट कर दी ना, वो अलग से क्राइम बन गया। तो रॉबरी में आपको हर्ट करने की जरूरत नहीं है, वहां सिर्फ फियर है, वहां सिर्फ इंस्टेंट फियर दिखा रहे हो। तो 394 में इट इज एन ऑफेंस इन इटसेल्फ, वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी। अब आगे हम देखेंगे, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। 396 में डेकॉइटी विद मर्डर। जी एक सेकंड, उसको रिपीट कर दो, इसको इस सेक्शन के साथ कनेक्ट करना आपने 390 या किसको किसके साथ? सर 390 में रॉबरी की डेफिनेशन है, उसको आप 392 के साथ कनेक्ट कर दो जहां पे उसकी पनिशमेंट है। 391 में डेकॉइटी की डेफिनेशन है, उसको आप कनेक्ट कर दो 395 के साथ जहां पे उसकी पनिशमेंट है। सो आई एम जस्ट कनेक्टिंग डेफिनेशंस विद पनिशमेंट। और ये जो आपने बोला था 511 का कि वो उसमें वो क्या था, एक बार दोबारा दोहराओ सर सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी इज द लास्ट सेक्शन दैट वी हैव इन आईपीसी। आई रिमेंबर दैट, आई रिमेंबर द अटेम्प्ट के लिए फ्रैक्शन, हाँ, अटेम्प्टिंग टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट लाइफ अदर इम्प्रिजनमेंट, जहां पे नहीं दिया गया है कुछ भी, वहां पे हम इस सेक्शन में आ जाते हैं। मगर क्योंकि ये जो रॉबरी और थेफ्ट वगैरह है, इट्स समथिंग दैट यूज्ड टू हैपन अ लॉट व्हेन आईपीसी वाज मेड, तो इन लोगों ने क्या किया कि उसके लिए एक स्पेशल सेक्शन बना दिया। तो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग एवरीवन कि बिकॉज देयर इज अ स्पेशल सेक्शन दैट वी ऑलरेडी हैव फॉर दैट, तो हमें 511 में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस में। मगर अगर ऐसा ना होता तो हम 511 की शरण में पहुंचते हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस कम्स, ये सारे एग्रीवेटेड ऑफेंसेस के बाद के, ये देख लेना, ये तो फटाफट देख लो। 397 एंड 398 क्या है? रॉबरी और डेकॉइटी विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। 398 अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डेकॉइटी व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन्स। इसका भी अटेम्प्ट अलग से दे दिया तो आप इसी के अंडर जाओगे 398 में। अच्छा 396 बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेकॉइटी विद मर्डर। डेकॉइटी भी करी, साथ में आप किसी को मार के भी आ गए। तो हमने एक जगह पे इसका जिक्र किया था 396 का, जब हम पहली क्लास पढ़ रहे थे, फर्स्ट क्लास, that this is one of the offenses where even the preparation is punishable। ठीक है, इसकी अगर हम अंदर लैंग्वेज पढ़ेंगे तो प्रेपरेशन भी इसकी पनिशेबल है। इसी तरह से और कौन से सेक्शन थे? 122, 126, ऐसे और सेक्शंस थे हमारे। काउंटर फीटिंग वगैरह में भी कुछ सेक्शन थे, एक दो, राइट। लेट्स गो अहेड। 399 मेकिंग प्रेपरेशन टू कमिट डेकॉइटी, ये नीचे के सारे डेकॉइटी से रिलेटेड हैं। 399 से 402 तक एक साथ रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशंस में बहुत बार आते हैं। सो प्रेपरेशन जो है 399 है जहां पे प्रेपरेशन पनिशेबल है। 399 मेकिंग प्रेपरेशन टू कमिट डेकॉइटी। 400 punishment for belonging to gang of dacoits। अगर if you only belong to a gang of dacoits then also you are punishable। इसी तरह से हमने देखा था ना, अगर only if you are a member of unlawful assembly you are punishable, है ना। तो वहां पे भी आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होती। just because you are a member of an unlawful assembly, just because you are a member of an assembly which has been commanded to be dispersed, you have committed a crime, nothing else that has to be done। उसी तरह से यहां पे भी पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू अ गैंग ऑफ डिकॉइट्स। सो आपका रोज का उठना बैठना है बड़े बड़े डकैतों के साथ, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। 401 इज पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीव्स। ठीक है,
सो डेकॉइट्स माने 5 लोग एक साथ काम करने वाले, जिसमें अपना फियर वगैरह सब कुछ करते हैं, और थीव्स जो चोरी करते हैं नॉर्मल, ज्यादा बड़ी बात नहीं करते। एंड देन 402 इज असेंबलिंग फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग डेकॉइटी, असेंबली कर रहे हैं, कहीं पे इकट्ठे होते हैं, ठीक है। वो स्कूल वाली असेंबली नहीं है ये कि प्रेयर कर रहे हैं सुबह उठ के हाथ जोड़ रखे। सो असेंबलिंग फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग डेकॉइटी। नाउ इज क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये एक जैसे ही हैं दोनों। सिर्फ 2 सेक्शंस है मिसअप्रोप्रिएशन में, 403 और 404, ठीक है। अब मिसअप्रोप्रिएशन में क्या हो रहा है, आपने चोरी तो नहीं करी, आपने कोई भी चीज किसी के पोजेशन से बाहर नहीं निकाली, यहां तक कि अभी तक आपकी इंटेंशन भी डिसऑनेस्ट नहीं है ठीक है, और किसी का इस प्रॉपर्टी पे पोजेशन भी नहीं। नाउ इफ देयर इज समथिंग लाइंग ऑन द स्ट्रीट, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बैग मिला रोड पे पड़ा हुआ, मैंने जाके चेक किया, अभी तक तो मैंने कोई क्राइम नहीं किया, मैं चेक कर सकता हूं कुछ भी पड़ा हुआ है। मैंने बैग में चेक किया तो पता चला एक लैपटॉप पड़ा है और उसमें एक फोन भी पड़ा है। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया, मैंने फोन उठाया, चेक किया, फोन में मैंने देखा कॉन्टैक्ट्स वगैरह चेक किए, एंड उसमें कॉन्टैक्ट्स थे बहुत सारे, मगर मैंने किसी को भी कॉल नहीं किया। और मैंने कहा छोड़ो यार, घर लेके चलते हैं इसे। लैपटॉप भी घर लेके चले गया, दोनों को फॉर्मेट मारा और यूज करने लग गया, ठीक है। मैंने कौन सा क्राइम कर दिया? I have appropriated someone else's property for my own use, which I did not deserve. So this is a wrongful gain for me, right? Wrongful gain कहाँ पे defined है IPC में? Dishonestly के आसपास ही था। 23, sir. 23 करेक्ट। सो 23 यहाँ पे हम साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अब मेरी देखो इंटेंशन, जब मैंने वो बैग देखा और उसे उठाया और उसे चेक किया, तब तक इनोसेंट था मैं, मगर फिर मेरी किस्मत कह रहा हूँ, मेरी नीयत फिसल गई, एंड दैट इज व्हेन द ऑफेंस हैपेंड। अगर मैं यही बैग उठा के चेक करता और देखता कि इस फोन में किसी का नंबर है या नहीं है, नंबर नहीं मिला, मैंने देखा कि इस पे कोई किसी का कोई आईडी वगैरह लगी हो, पीछे कई बार लोग फोटो डाल देते हैं या कुछ ऐसी चीज काम कर देते हैं, या लैपटॉप में कोई नंबर नहीं मिला, आई ट्राइड फाइंडिंग समवन, सब कुछ किया मैंने, नहीं मिला कोई भी। उसके बाद मैं इसको 4-5-10 दिन बाद फिर मैंने कहा चल ठीक है यार, अब नहीं मिल रहा तो फेक थोड़ी दूंगा उठा के, दैट्स आई विल नॉट वेस्ट इट, आई स्टार्ट यूजिंग। इज दैट अ क्राइम? इज दैट गोना बी अ क्राइम? क्राइम तो हो गया ना सर, फिर क्यों यूज crime कर हो गया? लिया, यूज करना शुरू कर दिया ना सर। मगर आपने सर पहले चेक भी तो किया ना कि मैं किसी को दे सकता हूँ या नहीं, कोई ओनर है या नहीं, ये तो ट्राई कर लिया आपने। तो क्या बात सर, आपने पर्सनल यूज तो किया ही है ना, तो अब मैं आपकी भी है ही नहीं। तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि अब ऐसी चीज को मैं उठा के बाहर फेंक दूं, घर से बाहर, वहीं छोड़ के आ जाऊं जहां पड़ा हुआ था? Return to the नहीं, आप- police. पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए था। पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए था, दैट इज वन थिंग दैट आई कुड डू, बट आई डिड नॉट डू दैट। बट मैंने अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस पूरी करी है। So in most of the cases, when we'll look at the cases, what will happen is, this is one thing, one question that I have also had, कि जाके पुलिस को दे दो, अपने पास क्यों रखते हो? But what the law says is that अगर आपने ड्यू डिलिजेंस करी है, किसी को पूरी तरह से ढूंढने की कोशिश करी है, and you can prove that you have actually tried finding someone, और आपने जगह जगह पूछा, जाके देखा किसी को मैं ढूंढ सकता हूँ, और वो अपनी तरफ से एफर्ट्स किए, तो फिर आप इसके अंदर पनिशेबल नहीं होते, ठीक है। सो आपकी इंटेंशन खराब नहीं होनी चाहिए बस। वेयर इज दैट रिटन जो आप बोल रहे हो कि आपने ड्यू डिलिजेंस किया है? सर ये केसेस में ही लिखा है कि ड्यू डिलिजेंस पूरी तरह से अगर आपने ट्राई किया है किसी को ढूंढने का, फिर भी कोई नहीं मिलता, तो फिर आप नॉट द लॉ बट द वेरियस जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। हाँ, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, करेक्ट।
अब जैसे अब कोई जरूरी नहीं है कि कोई ऐसी चीज हो जो आप पुलिस वालों को दे सकते हो। अब कोई गाय वगैरह खो गई है किसी की, वो गाय गांव में घूम रही है इधर उधर, आप पकड़ के अपने घर ले आए, या किसी का कुत्ता खो गया है, आप उसे पकड़ के अपने घर ले आए, पालना शुरू कर दिया। अब उसको पुलिस को दे दोगे क्या जाके? नहीं दोगे। बट अगर आपने बिना किसी को ढूंढे पूछे उसका इश्तिहार दिए, फेसबुक पे बिना पोस्ट डाले, अगर आपने ऐसे ही रख लिया अपने पास और पालना शुरू कर दिया, दैट इज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। बट इफ यू हैव ट्राइड फाइंडिंग द ओनर एंड यू हैव पुट इन योर एफर्ट्स एंड यू हैव बीन इनोसेंट एंड you have been of good will, then it's okay. Then it's not an offense under this section at least. ठीक है? So that comes under 403, dishonest misappropriation of property. 404 dishonest. तो सर ऐसे में क्या डिसऑनेस्ट निकल गया क्या वर्ड फिर? सॉरी सर, अगर ड्यू डिलिजेंस कर लिया तो डिसऑनेस्ट जो वर्ड लगा है आगे इसमें सेक्शन में, वो फिर उस एंड हो जाता है वो, इसका मतलब ड्यू डिलिजेंस के लिए डिसऑनेस्ट खत्म, डिसऑनेस्ट खत्म हो जाएगा। अगर आपने ड्यू डिलिजेंस कर लिया तो दैट मींस कि आपने डिसऑनेस्ट को इरेज कर दिया। ऑब्वियसली ना, आपने अपनी इंटेंट दिखा दी ना कि मैंने ड्यू डिलिजेंस करी है। तो इफ आई हैव बीन डिलिजेंट एंड आई हैव डन माय ड्यू डिलिजेंस, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट डिसऑनेस्ट। इट कुड बी वन थिंग, या तो मेरी गुडविल है या इलविल है। कैन आई से दैट आई हैव अ गुडविल एज वेल एज एन इलविल टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर थिंग और पर्सन? आई कैन नॉट। आई कैन हैव आइदर एन इलविल और अ गुडविल। करेक्ट? जैसे अब मेरे घर पे विवेक चोरी करने आया था, अब मैं बोलूं कि विवेक के लिए मैं मारना चाहता नहीं था। नॉर्मली मैं अगर किसी को मारता तो मैं इतना मारता, 10 घूंसे मारता। मगर क्योंकि मेरी विवेक के लिए इलविल के साथ एक गुडविल भी थी, तो मैंने उसे सिर्फ 5 घूंसे मारे। ऐसा नहीं हो सकता। सो आइदर इट इज एन इलविल और इट इज अ गुडविल। सो अगर आप ड्यू डिलिजेंस दिखा देते हो, देन डिसऑनेस्ट नहीं हो आप। राइट? ठीक है। सो 403 इज नॉर्मल डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी और की चीज खुद यूज कर लेना। एंड 404 is dishonest misappropriation of property possessed by diseased person at the time of his death. अब आप शमशान में कोई मर गया है, उसका सामान निकाल के ले आए, ठीक है? कोई रोड पे पड़ा हुआ है, मर रहा है, आप उसका सामान लेके आ गए। If you have done anything like that, it's an aggravated offense. ठीक है? इसी तरह से हमने एक और ऑफेंस देखा था डिसीज पर्संस के खिलाफ, डिफाइलिंग अ डिसीज्ड, जिसमें हमने नेक्रोफीलिया की बात करी थी। ऐसी कोई बात करी थी क्या हमने? समवन हैविंग इंटरकोर्स विद डेड बॉडीज। 295, yes sir. वेरी क्लोज सर, 297 जहां पे रिलीजियस प्लेसेस पे आप दंगा फसाद करते हो, ऑल दैट स्टफ, वहां पे ये चीज भी आता है। सो यू कैन कनेक्ट इट विद दैट समटाइम्स। 404 एंड 297। अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं। वी आर ऑलरेडी अप 2 minutes, बट क्योंकि हमने शुरू में बहुत टाइम गवा दिया था चीजों में, लेट्स जस्ट डू दिस वन लास्ट पार्ट। 405 है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे हमने थेफ्ट से एक्सटॉर्शन निकाला, एक्सटॉर्शन से रॉबरी निकाला, रॉबरी से डेकॉइटी निकाला, एंड देन हमने किसी एक तरह से डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी को भी जोड़ा, because it is something that is not yours. It is a movable property which is not yours and you are taking possession of it. भले ही वहां पे कोई ओनर नहीं है, कुछ नहीं है, बट एक तरह से थेफ्ट जैसा ही है ना। इसी तरह से क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है? जब आप मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी में ट्रस्ट एंट्रस्टमेंट को जोड़ देते हो। सो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लस एंट्रस्टमेंट इज इक्वल्स टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, CBT। तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी एंट्रस्ट करी थी श्रद्धा को, और मैंने श्रद्धा को बोला कि ये मैंने एकदम नए नए फ्रूट्स अपने पेड़ से निकाले हैं, इसको अपने पास रखना, एंड आई विल बी बैक इन 2 days। मैं घर पे सब फ्रिज वगैरह सब बंद करके जा रहा हूँ, तो आप अपने घर पे रख लो, एंड आई विल कम बैक एंड टेक इट फ्रॉम यू। नाउ श्रद्धा भाई पुरानी चोर, श्रद्धा पुराने टाइम से मेरे फ्रूट्स चुराती आ रही हैं, उन्हें चस्का लग गया, उन्होंने खा लिए फ्रूट्स, मेरे खा लिए, शी यूज्ड देम। So now because I had entrusted that property of mine to Shraddha to take care of and not to make any changes to it, not to make any alterations,
and she has made that change to the thing or consumed it or used it to her own use, that is criminal breach of trust. Now this is an aggravation of misappropriation. Misappropriation में I didn't know कि वो बंदा कौन है जिसकी वो प्रॉपर्टी है, मैं ले गया, मैंने यूज कर लिया, that is one offense. But then I knew वो प्रॉपर्टी किसकी है. On top of it, I was entrusted to take care of it, and still I have used it for my own use, for my own purposes. तो ये एक एग्रीवेटेड ऑफेंस है. मिस एप्रोप्रिएशन में अगर आप इंटरेस्टमेंट डाल दोगे, जिस तरह से हमने पीछे थेफ्ट में हमने एग्रीवेट किया था ना कि अगर कोई नॉर्मल आदमी चोरी करता है तो ठीक है, अपने घर का ही बंदा चोरी कर रहा है, ज्यादा धक्का लगता है ना. सो इसी तरह से यहाँ पे भी एग्रीवेट हो रहा है मिस एप्रोप्रिएशन में. व्हेन देयर इज एन इंटरेस्टमेंट वाला फैक्टर, दैट बिकम्स सीबीटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ठीक है. So criminal breach of trust is misappropriation plus entrustment, 405. इसकी punishment 406 में दी गई है, punishment of criminal breach of trust. Now 407, 408, 409 में 3 aggravated forms हैं इसकी. First is by carrier etc. अब अगर मैंने किसी को अपना सामान ले जाने को दिया है कि सर आप देहरादून से दिल्ली डिलीवर कर दो, पोस्टल ऑफिस में दिया और पोस्टल वाले खुद ही खा जाते हैं उसको, that is an aggravated form. I had put my trust in them. There was a contract between us. There was actual payment between us. There was something more than that. ना अब श्रद्धा और मेरे बीच में तो it was just a casual something. I entrusted her with my property. Now if I entrust someone under a contract proper, उसे hire कर रहा हूँ मैं, I tell that person take this property from this place to that place. That becomes something, a deal which involves more responsibility. And more responsibility means the breach of it will award more imprisonment. ठीक है. So ये aggravated form हो गया. इसी तरह से क्लर्क और सर्वेंट अगर कुछ कर देता है, जैसे गोपाल सर के ऑफिस में इंटर्न ने चोरी करी थी. नाउ अगर गोपाल सर ने किसी इंटर्न को एंट्रस्ट करा है कि ये लो मेरी वो 15 लाख वाली घड़ी लो, और ये मैं अभी थोड़े दिन में आके तुमसे ले लूंगा, तुम 2 दिन के लिए पहन लो, और 2 दिन के बाद वो फरार हो गया, ऑब्वियसली कौन आएगा वापस? तो 408 क्लर्क और सर्वेंट जब ऐसा कर दे. एंड 409 व्हेन इट इज अ पब्लिक सर्वेंट और अ बैंकर और मर्चेंट. ये और ज्यादा फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए. बैंकर के पास हम अपना क्या रखते हैं, अपना सोना जवाहरात, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, विल एक्सेट्रा. पब्लिक सर्वेंट, if there's a public servant, obviously they have a lot of duty. Then there's a banker, obviously keeping a lot of valuable stuff for us. So क्योंकि वैल्यू बढ़ गई है प्रॉपर्टी की, इसलिए एग्रीवेट हो गया है. ठीक है. और ये पार्ट 410 से 414 ऊपर जितनी भी चीजें हुई हैं ये याद रखने वाली चीज है. इसके आगे जो चीजें हैं ना, चीटिंग, फॉर्जरी, इन सारी चीजों से भी आप किसी से कुछ ना कुछ सामान ले सकते हो. मे बी आई चीट अ पर्सन. मैं क्या करता हूँ कि मैं पूरी यूनिफॉर्म वगैरह पहनता हूँ बढ़िया, और IAS ऑफिसर बन के निकलता हूँ भाड़े पे ड्रेस लेके, और एंड यूजिंग दैट अटायर ऑफ माइन आई टेल अ किराना स्टोर that give me so and so saman because I have just come to the city, I don't know many people and I don't have stuff at my home. तो आप मुझे 10,000 रुपया क्रेडिट दे दो और मैं सामान आपको पैसा लाके बाद में देता हूँ. तो वो कहेगा अच्छी बात है यार, एक IAS ऑफिसर मेरे से एहसान लेने आया है, दे देता हूँ, 10,000 का सामान दे दिया. दैट इज नॉट एक्सटॉर्शन. करेक्ट. एक्सटॉर्शन तो है नहीं, फियर तो कोई है नहीं, मैं खुद उठा के भी नहीं ले गया, थेफ्ट भी नहीं है. जब थेफ्ट और एक्सटॉर्शन नहीं है तो रॉबरी बनी नहीं सकती, डेकॉइटी बनी नहीं सकती. मिस एप्रोप्रिएशन भी नहीं है, किसी और का सामान मैंने अपने पास रख के यूज कर लिया व्हेन आई डिड नॉट नो द ओनर, वो भी नहीं है. कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है, एंट्रस्टमेंट भी नहीं हुई थी. ठीक है. ये एक अलग से अपने आप में ऑफेंस हुआ जो है चीटिंग बाय पर्सोनेशन का. ठीक है. अब चाहे मैंने चीटिंग करी हो, सामान तो मेरे पास किसी और का आ गया, बट इसको हम 410 में नहीं डालते, स्टोलन प्रॉपर्टी वाली कैटेगरी में नहीं डालते इसे. स्टोलन प्रॉपर्टी वाली कैटेगरी में क्या क्या आएगा? थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, मिस एप्रोप्रिएशन, रॉबरी और डेकॉइटी. 410 से पहले वाले जितने भी अपराध हैं वो सब लोग 410 में आएंगे, 410 के आगे वाले नहीं आएंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर किसी के पास स्टोलन प्रॉपर्टी पाई जाती है
और 114 की जो हमने अभी बात करी थी जहां पे प्रिजम्पशन थी कि उसे चोर माना जाएगा, इफ समवन इज कॉट विद स्टोलन प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी हैज कम फ्रॉम थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा, द पर्सन वुड नॉट बी इन अ पोजिशन टू डिनाई कि ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं है। सपोज मैं किसी का फोन चुरा के लाया हूं, आई हैव स्टोलन whose phone, maybe Nandini's phone, ठीक है, या Nandini's headphone that she is wearing. Now I have stolen these headphones. I have these headphones. I am caught with this property that I have stolen. 410 में आ गया stolen property में. Now when police comes and Nandini comes, they will be able to identify this is my headphone. इसके ऊपर से थोड़ा सा वो टैग हटा हुआ था, थोड़ा सा यहाँ से टूटा हुआ था, यहाँ टेप लगाई हुई थी. There must be something to identify that this certain headphone is Nandini's certain headphone. ठीक है. बट अगर कोई ऐसी चीज है जो चीटिंग या फॉर्जरी से आई है, दैट मीन्स इट हैज चेंज्ड इन इट्स फॉर्म. ठीक है. सो मैंने फॉर्जरी करी है, कोई चीज में फैब्रिकेशन करी है, दैट इज चेंज्ड इन इट्स फॉर्म. तो लॉ क्या कहता है कि भाई अब ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगी सिचुएशन. चीटिंग वगैरह एंड फॉर्जरी वगैरह को अगर हम स्टोलन प्रॉपर्टी में डाल देंगे और प्रिजम्पशन वगैरह यूज करेंगे जो एविडेंस एक्ट में दी है, तो सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी. सो लेट इट बी अ मैटर ऑफ ट्रायल व्हेन इट कम्स टू चीटिंग एंड फॉर्जरी एंड स्टफ, कॉम्प्लेक्स ऑफेंसेस. व्हेन इट इज a very straightforward offense like criminal breach of trust, misappropriation of property, theft, extortion, robbery, dacoity, ये सारी चीजें हम 410 में ले लेते हैं. ठीक है. सो 410 में 410 के आगे वाली चीजों से आया हुआ सामान आपके हाथ में नहीं माना जाएगा स्टोलन प्रॉपर्टी, उसको अलग से डील किया जाएगा, क्योंकि उसमें आप फ्रॉड, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किसी को इंड्यूस कर रहे हो एंड ऑल दैट स्टफ, वो बड़े ऑफेंसेस हैं, उनके लिए अलग से स्पेशल सेक्शंस बनाए गए हैं. जो 410 से पहले वाले सिंपल से ऑफेंसेस हैं जो रोज रोज होते ही हैं हमारी सोसाइटी में, उनके लिए हमने 410 वगैरह में अरेंजमेंट करी है. सो 410 अब कहता क्या है? स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में. अगर किसी के पास स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है तो सिर्फ ये नहीं कि आप ये बोलो मैंने चुराई तो है नहीं ना, मेरे पास तो ये रख के चला गया था ना, यू विल बी लायबल बिकॉज यू आर कॉट विद स्टोलन प्रॉपर्टी. प्रिजम्पशन आपके ऊपर लगेगी, आपको ट्राई किया जाएगा and you will be punished for it if you cannot account for the possession. ठीक है. So इस बड़ा ध्यान रखना पड़ता है. अभी what happened, my cousin brother in Ludhiana, he was friends with some people that he used to play cricket with. अब cricket है भाई, cricket खेल लेते हैं किसी के साथ भी, ऐसा थोड़ी होता है कि देख के क्रिकेट खेलेंगे, है ना. तो सब खेलते हैं, ग्राउंड में सब आते हैं खेलते हैं. तो उसकी दोस्ती यारी सबसे थोड़ी बहुत थी. नाउ ये इनमें से 2-3 लड़के एक बार इसके पास आते हैं और बोलते हैं कि यार मैं ना बाहर जा रहा हूँ और मेरी स्कूटी तू यहाँ पे रख ले एंड मैं थोड़े दिन में आके इसको उठा लेता हूँ. तो इसने कहा ठीक है मेरे घर पे रख दे स्कूटी भाई. तो रख ली. और थोड़े दिन बाद दोस्त नहीं आए, पुलिस आई डायरेक्ट कि आपके पास ये स्कूटी क्या कर रही है, ये तो चोरी की स्कूटी है एंड ऑल दैट. ले गए, पूरी रात पुलिस स्टेशन में बैठा के रखा. एंड इट वाज सुपर ट्रॉमेटिक फॉर he himself and his family and mother and all that, and he does not have a father, so और ज्यादा उनके लिए डर वाला माहौल हो गया. तो these things, being lawyers, we should be aware of, and we should tell others as well that you should be aware. किसी की चोरी, किसी का भी सामान मत रखो भाई without any diligence. So stolen property अगर आपके पास पाई जाती है, प्रूव हो जाती है, then you are liable. Then dishonestly receiving stolen property, ये आप रोज का काम है आपका. You receive stolen property from people. होते हैं लोग की चोरी का सोना वगैरह के लिए पैसे दे देते हैं, थोड़ा कम पैसा देते हैं बट दे देते हैं. That comes under receiving stolen property. Dishonestly receiving stolen property stolen in commission of dacoity, ये अलग से बना दिया है. It's an aggravated offense. अगर dacoity से आई भी प्रॉपर्टी आप अपने पास रिसीव करते हो, उसको कन्वर्ट भी करवा देते हो, and many things that you can do with it to make your wrongful gains, then you come under 412, which is an important one. Exams वगैरह जिन्होंने देने हैं, 412 याद रखना, 410 और 412 दोनों याद रखना. Then habitually dealing in stolen property, अगर आपकी आदत है stolen property वाली, नॉर्मली अगर आप एक बार का इंसिडेंट है 410 में आओगे, इसको कनेक्ट कर लेना 413 के साथ. अगर आप हैबिचुअली ये काम करते हो तो आप 413 में आओगे.
हैबिचुअली हमने एक और देखा था ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में हैबिचुअली कुछ हो रहा था, बच्चे चोरी कर रहे थे, ठग वाली डेफिनेशन ठग वाली। सर ठग कहाँ पे था सर? 310 310 एग्जैक्टली। 310 में ठग है और 311 में उसकी पनिशमेंट है। एंड 414 इज असिस्टिंग इन कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। इट इज अ काइंड ऑफ help, a kind of aid that you are doing for the people, so you will be punished along with them, right? हमने जब अबेटमेंट पढ़ी थी तो अबेटमेंट की डेफिनेशन कहाँ पे थी? वन 107 में डेफिनेशन थी। और डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा था कि अगर आपको किसी को अबेट करना है तो आप 3 तरीकों से कर सकते हो। एड करना किसी को, कॉन्स्पिरेसी करना किसी के साथ, या फिर एडिंग, कॉन्स्पिरेसी एंड थर्ड इज engaging in certain what? Engaging yourself in the activity। 3 चीजें होती है ना इसमें 107 में। तो 107 कहता है 3 चीजें, इंस्टिगेटिंग, एंगेजिंग एंड एडिंग। ठीक है, सो इंस्टिगेटिंग, एडिंग एंड एंगेजिंग इन कॉन्स्पिरेसी। तो अब यहाँ पे जो आप ये कंसीलमेंट कर रहे हो, दैट इज अ काइंड ऑफ अबेटमेंट दैट यू डू, मगर इसको वहां पे नहीं डाला गया है, इसके लिए यहाँ पे स्पेशल ऑफेंस बनाया गया है। सो 414 में असिस्टिंग इन कंसीलमेंट के हमने और ऑफेंसेस भी देखे थे, 118, 119, 120 में कंसीलमेंट ऑफ डिजाइन एंड ऑल दैट स्टफ। सो बाय कंसीलिंग यू हेल्प समवन, राइट? तो अगर आपने कंसील करा है स्टोलन प्रॉपर्टी को, दैट इज एन ऑफेंस। और अगर आप आदमी को ही कंसील करके रख लो, उस तरह से हेल्प करो, तो उसको कौन सा ऑफेंस बोलेंगे? वो अपहरण वाला में आ जाएगा ना। अपहरण तो एब्डक्शन होता है सर। अब्डक्शन नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी को कंसील करके रखा हुआ है लीगल पनिशमेंट से बचाने के लिए। आप किसी को एब्डक्ट करके नहीं लाए हो, फोर्सफुली एब्डक्ट किया है। अगर किसी को आपने छुपा के रखा है अपने अभी तो आपने प्रॉपर्टी छुपाई 414 में, हार्बरिंग करेक्ट। तो हार्बरिंग के हमने ऑफेंसेस देखे थे 130, 136, 212 में भी था आई थिंक, 212, 216, तो वहां पे भी। और हार्बरिंग की डेफिनेशन यहाँ पे थी 53A में, राइट? सो आज फिर से हमारे प्लान से थोड़ा कम काम हुआ है। I was meaning to complete up till 460। अब 12 बजे तक बैठ रहे हो तो बताओ। टंडन सर ने ना कर दिया एकदम आंख उठाते ही। चलो, anyways, we have covered fine distance 470 कितना 377 से 375 से लेके we have covered up till 414। छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ सर।